वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। फीमेल सुपरवाइज़र से रिलेटेड एग्ज़ाम डेट आलमोस्ट अनाउंस हो चुकी है। हमने आज से मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ख़ास करके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपने प्रेपरेशन अपनी कंप्लीट कर ली होगी। नाउ टू चेक योर सेल्फ यू कैन गो थ्रू द mock test series. So let's begin with the first question. According to Aristotle, why is man considered a social animal? Aristotle के अकॉर्डिंग मैन को सोशल एनिमल क्यों कहा गया है? A part due to gregarious instinct, B to promote individualism, C to avoid conflict, D part to create competition. So the correct option is A part, due to gregarious instinct. Question number 2. Feudal society was based on ownership of what? जो feudal society थी वो किसकी ownership पर based थी? Knowledge, land, money, technology. इसका आंसर है B part, land. Next question. What is the etymological origin of the word community? Greek, Latin, Sanskrit or French? So the correct option is B part, Latin. Next question. What does the Latin word associato mean, from which the term association is derived? Associato जिस टर्म से association derive हुआ है, ये Latin word है. इसका मीनिंग आपको बताना है. What is the meaning of this word associato? Isolation, unity, separation or exclusion? Correct option is B part, unity. Next question. According to GDH Cole, what defines an association? A group with shared beliefs, pursuing a common purpose through corporative actions, temporary group with specific goals, and informal gathering. The correct option is pursuing a common purpose through corporative actions. Next question. According to Max Weber, what are the 3 dimensions of social stratifications? Max Weber के अकॉर्डिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की 3 डायमेंशंस क्या हैं? क्लास, रेस एंड जेंडर, क्लास, स्टेटस एंड पावर, वेल्थ, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री. द करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट, क्लास, स्टेटस एंड पावर. Next question. Endogamy in the caste system refers to marrying outside one's caste, marrying within the same caste, marrying only for love, marrying across different social classes. The correct option is marrying within the same caste. अपनी ही कास्ट में मैरी करना, इसको एंडोगेमी कहा जाता है. Next question. What does the role social mobility play in social stratification? Social stratification में social mobility का क्या रोल है? A part, it ensures that everyone has equal access to resources and opportunities. It refers to the movement of individual or groups from one social class to another. It encourages competition and individualism within the society. It promotes cultural diversity and tolerance among different social groups. So इसका correct option है B part. It refers to the movement of individual or group from one social class to another. यानी किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप्स का एक सोशल क्लास से दूसरे क्लास में मूव करना. दैट मीन्स कि मिडिल क्लास से अपर क्लास में या अपर क्लास से लोअर क्लास में मूव करना, इसको सोशल मोबिलिटी कहा जाता है. So the correct option is B part. Next question. Which type of marriage involves a woman marrying multiple brothers simultaneously? So कौन सी मैरिज है जिसमें एक वुमेन एट ए टाइम बहुत सारे भाइयों से शादी करती है? नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, मोनोगेमस पॉलीएंड्री, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री और सोरोरल पॉलीएंड्री. Correct option is fraternal polyandry, C part. Next question. Which term describes the tracing of descent through both maternal and paternal lines? किसी का descent traced करना
थ्रू बोथ मैटरनल या पैटर्नल लाइंस, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है बाइलेटरल डिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शरी किन? किनशिप की 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी किन। इसमें जो टर्शरी किन है उसकी क्या एग्जांपल है? सिबलिंग, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, नाइस एंड नेफ्यूज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फैमिली इन मोस्ट सोसाइटीज? प्राइमरी फंक्शन का फैमिली का क्या है? इकोनॉमिक प्रोडक्शन, रिलीजियस सर्मनीज, पॉलिटिकल एक्टिविज्म और एंटरटेनमेंट। करेक्ट ऑप्शन इज इकोनॉमिक प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सोशियोलॉजी अ फैमिली इज डिफाइंड एज अ सोशल यूनिट बेस्ड ऑन। फैमिली को कैसे डिफाइन किया जाता है? अ सोशल यूनिट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक टाइज, ब्लड मैरिज और एडॉप्शन, एजुकेशनल बैकग्राउंड और जियोग्राफिकल लोकेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट, ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन। Next question, what is the definition of values in sociology? A part, values are physical objects that societies consider important. Values are deeply ingrained beliefs guiding behavior and decision making. Values are temporary societal trends. Values are individual preferences without societal significance. So the correct option is B part, values are deeply ingrained beliefs guiding behavior and decision making. Next, what distinguishes values from norms in sociology? Norms और values का आपस में क्या difference है sociology में? A, values are specific rules while norms are general principles. Values are cultural beliefs while norms are societal expectations. Values are individual preferences while norms are collective standards. Values are moral codes while norms are legal regulations. So correct option is B part. Values are cultural beliefs while norms are societal expectations. Next question, which of the following is an example of folkway? A, not interpreting someone when they are speaking, not committing murder, not stealing from others, not driving above the speed limit. Correct option is A, not interpreting someone when they are speaking. नेक्स्ट, व्हाट डिस्टिंग्विशेस फोकवेज फ्रॉम मोर्स? फोकवेज और मोर्स का आपस में क्या डिफरेंस है? कौन सी चीज़ इनको आपस में डिस्टिंग्विश करती है? सेवरिटी ऑफ consequences फॉर वायलेशंस, फॉर्मल कोडिफिकेशन इन लॉ, यूनिवर्सलिटी अक्रॉस कल्चर्स, नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट, सेवरिटी ऑफ consequences फॉर वायलेशन। Next, what policy shift occurred in India after 1990? 1990 में इंडियन जो इकॉनमी है इसमें किस टाइप का पॉलिसी शिफ्ट हुआ था? एन इंक्रीज्ड प्रोटेक्शनिज्म, एम्ब्रेसमेंट ऑफ सोशलिज्म, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी और एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस। करेक्ट ऑप्शन इज लिबरलाइजेशन ऑफ इकॉनमी। नेक्स्ट, व्हाट इम्पैक्ट डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव ऑन एनवायरनमेंट? इंडस्ट्रियलाइजेशन का एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट है? इट रिड्यूस्ड पोल्यूशन लेवल ड्यू टू इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, इट लेड टू डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सी, इट प्रोमोटेड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, डी, इट हैड नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट, इट लेड टू डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, व्हाट रोल डज अर्बनाइजेशन प्ले इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन? अर्बनाइजेशन का क्या रोल, अर्बनाइजेशन ने क्या रोल प्ले किया इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन? इट एनकरेज्ड पीपल टू रिटर्न टू रूरल एरियाज, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इट फॉस्टर्स द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड अर्बन सेंटर्स, इट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट, it fosters the growth of cities and urban centers. Next question, which act aimed to prevent sex selective abortions? सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस जो किए जाते हैं, यानी एबॉर्शंस कराए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, तो उस एक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961,
Pre-Conception and Prenatal Diagnostic Techniques Act 1994, Indian Divorce Act 1969. Correct option C. Preconception and Prenatal Diagnostic Technique Act 1994. Next, what is the purpose of gender laws? A part, to reinforce gender stereotype and traditional rules, to ensure equal rights and opportunities for individual regardless of gender, to restrict women participation in political activities, D. To promote discrimination based on gender identity. Correct option B part, to ensure equal rights and opportunities for individuals regardless of gender. यानी इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना किसी भी इंडिविजुअल को regardless of gender. So correct option is B part. Next, how many articles are there in Universal Declaration of Human Rights? 15, 20, 30, 35. Correct option is 30, C part. Next, which part of Freir's model of personality deals with reality and helps balance between our desires and outside world? जो फ्रेड मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी है उसका कौन सा पार्ट रियलिटी से रिलेटेड है और हेल्प करता है बैलेंस करने में बिटवीन आवर डिज़ायर्स, हमारे डिज़ायर्स को, और आउटसाइड वर्ल्ड को बैलेंस करने में हेल्प करता है? तो फ्राइड का जो मॉडल है उसमें कौन सा ये पार्ट डील करता है? इड, ईगो, सुपर ईगो और लेबिडो. करेक्ट ऑप्शन इज ईगो. Next, what is the primary challenge in Erickson's stage of trust versus mistrust between 0 to 1 years? तो एरिक्सन की जो स्टेजेस हैं, वेरियस स्टेजेस उसने दी हैं, तो उनमें प्राइमरी चैलेंज क्या है? जो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट एक स्टेज दी है एरिक्सन ने, दैट इज़ बिटवीन 0 to 1 years. तो उसमें इस स्टेज में प्राइमरी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट बिटवीन 0 to 1 years ऑफ एज, इसमें प्राइमरी चैलेंज क्या है? Developing independence, establishing sense of trust in the world, forming deep relationships, or developing competence in the world. So correct option है B part, establishing a sense of trust in the world. So इस stage में according to Erickson's जो बच्चा होता है between 0 to 1 years, he establishes a sense of trust in the world. Next, what is the common feature of generalized anxiety disorder GAD? इसके common features क्या हैं? Intense fear of social situation and avoidance, persistence and excessive worry about a variety of events or activities, recurrent and unexpected panic attacks, intrusive memories and flashbacks related to traumatic events. Correct option is persistent and excessive worry about a variety of events or activities. जब किसी पर्सन के दिल में किसी इवेंट्स या एक्टिविटीज़ को लेकर बिलावजह कोई परेशानी पैदा हो जाती है, persistent and excessive worries उसके दिल में पैदा हो जाती हैं. So it is the common feature of generalized anxiety disorder. Next, which type of anxiety disorder is characterized by intense irrational fear of specific object or situation? So कौन सी anxiety disorder है जिसके characteristics हैं intense irrational fear, यानी बहुत ज़्यादा फियर होना ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या किसी सिचुएशन को लेकर या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को लेकर जब किसी के दिल में बिलावजह इंटेंस या इरेशनल फियर्स पैदा हो जाए, तो ये कौन से एंग्जाइटी डिसऑर्डर के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर और स्पेसिफिक फोबिया. इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, स्पेसिफिक फोबिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज म्यूजोफोबिया? म्यूजोफोबिया क्या है? फियर ऑफ माइस, फियर ऑफ स्पाइडर्स, fear of flies or fear of heights? So correct option is C part, fear of flies. Next question, the Lorenz curve is used to represent. जो Lorenz curve है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है? इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी लेवल्स, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और कैलोरी इनटेक. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. कभी कभी ये दो टर्म्स है लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट, तो इसमें दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है लॉरेंस कर्व और गिनी कोफिशिएंट इट इज़ रिलेटेड टू. सो ऑप्शन दिए जाते हैं पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज. सो इट्स ये जो टर्म्स है दीज आर रिलेटेड टू पॉवर्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन?
A person works fewer hours than desired. A person is unemployed due to technological changes. A person cannot find a job that matches their skills. A person works seasonally in agriculture. So इसका करेक्ट ऑप्शन है अ पर्सन वर्क्स फ्यूअर आवर्स देन डिजायर्ड. जितने आवर्स के लिए उसको काम करना चाहिए बट उससे कम आवर्स में वो काम करता है तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ए, natural volcanic eruptions, industrial emissions and human activities, shift in Earth's orbit or changes in solar radiation patterns. Correct option is B part, industrial emissions and human activities. Next, which of the following is the characteristics of water soluble vitamins? Water soluble vitamins की characteristics: they are stored in body's fatty tissues. They need to be replenished regularly as they are not stored in large amounts. They include vitamin A and vitamin D. Excess intake can lead to toxicity. So correct option is B. They do need to be replenished regularly as they are not stored in large amounts. Next, which vitamin, also known as retinol, is essential for vision and its deficiency can cause a night blindness. So कौन सा विटामिन जिसका कॉमन नेम रेटिनॉल है जो विजन के लिए बहुत ज़रूरी है एंड इट्स डेफिशिएंसी जो इसकी डेफिशिएंसी है दैट कैन कॉज अ नाइट ब्लाइंडनेस? विटामिन ए, B2, विटामिन ई, विटामिन के. करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स aims to provide financial protection and improve access to quality health care for vulnerable families in India? So गवर्नमेंट प्रोग्राम जिसका एम है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर इम्प्रूव करना फॉर वल्नरेबल फैमिलीज इन इंडिया. करेक्ट ऑप्शन ए, स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन यानी पोषण अभियान. सो करेक्ट ऑप्शन इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY. Next, which initiative is celebrated annually on November 15 to promote awareness about the importance of adoption in India? तो कौन सा इनिशिएटिव सेलिब्रेट किया जाता है हर साल नवंबर 15 को टू प्रमोट अवेयरनेस? ये अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एडॉप्शन इन इंडिया. नेशनल फोस्टर केयर डे, नेशनल एडॉप्शन डे, चाइल्ड प्रोटेक्शन डे और फैमिली डे. करेक्ट ऑप्शन इज नेशनल एडॉप्शन डे. Next, what is the main objective of Right to Education RTE Act 2019? इसका main objective क्या है? To regulate working conditions for children, to provide care and protection for children in need, to ensure free and compulsory education for children between 6 to 14 years, to address sexual offences against children. Correct option is C. To ensure free and compulsory education for children between 6 and 14 years. Next question, which of the following is component of National Social Assistance Program NSAP? इसका कौन सा कंपोनेंट है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS, अन्नपूर्णा स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान SSA और एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन. सो ये जो चार हैं इनमें से नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का कंपोनेंट कौन है? करेक्ट ऑप्शन इज अन्नपूर्णा स्कीम. इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ NSAP. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाडली बेटी स्कीम इन जम्मू एंड कश्मीर? इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है लाडली बेटी स्कीम का जो जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन, टू एम्पावर एंड इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फैमिलीज फॉर मैरिज ऑफ देयर डॉटर्स, टू एंश्योर द वेलफेयर एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल चिल्ड्रन बॉर्न ऑन और आफ्टर April 1, 2015. So the correct option is D part, to ensure welfare and education of girl children born on or after 2015. यानी किसी भी गर्ल का जो 2015 अप्रैल 1 2015 के बाद पैदा हुई है उसकी वेलफेयर एंड एजुकेशन का पूरा ध्यान रखना. इट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम नोन एज लाडली बेटी स्कीम. Next question, which scheme is aimed to provide a safe daycare facilities for
children aged between 6 months to 6 years, particularly catering to working mothers. सो कौन सी स्कीम है जिसका मेन एम है टू प्रोवाइड सेफ डे केयर फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन मैनली बिटवीन द एज ऑफ 6 months to 6 years. सो जो ऑप्शन है लाडली बेटी स्कीम, पालना स्कीम, स्कीम फॉर एडोलिसेंट गर्ल्स, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम. करेक्ट ऑप्शन इज पालना स्कीम. Now, last question. Under which scheme does the government provide financial assistance to pregnant and lactating women to ensure proper nutrition and health care during pregnancy and after children? कौन सी स्कीम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन ताकि प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर इंश्योर की जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ? नंबर 1 जननी सुरक्षा योजना, तेजस्विनी स्कीम, पालना स्कीम और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMVY. ओके, कमेंट बॉक्स में आप खुद लिखें कि किसने कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं इस फर्स्ट मॉक पेपर में. बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट सीरीज़ लेकर आऊँगा. ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक.